Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to beat, and grace my feet. So I take this time to welcome you all with this song, Amazing Grace. We have sung it in our section where we were worshiping God. We started with this song. I welcome each and every person. I know, मुझे मालूम है, God is making a difference in your life. Things have changed drastically. पहले कुछ और था, and you are seeing, some people have seen such great changes. कुछ लोग परमेश्वर के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं. I mean, their life is a testimony. Their life is the living letter which Paul spoke about. And some people are getting closer and they did not know God like that. वो पहले God को उस ढंग से नहीं जानते थे. And they think, wow, ये coincidence है या God है? And now these coincidences are increasing. And God is taking over their lives in the most wondrous ways. So let's just bow our heads in prayer. Always honor God for this time. ये टाइम है अनुग्रह के पलों का, जब हम टेस्टिमनी सुनेंगे, वचन सुनेंगे और मिल करके हम लोग बेनेडिक्शन करेंगे एंड में. So are you ready, my dear friends? Let's just pray. My God and my Father, I thank you for this opportunity that we are together on this platform, that we can celebrate you. We can love you and adore you. We love you, God. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. Please, people of God, tell this to God that you love him. God, we love you. You are so precious. आप कितने कीमती हैं. We thank you for this time. God, we would like to know कि आप दूसरों की जिंदगी में क्या कर रहे हैं और वो मेरी जिंदगी में भी करना. We are ready to hear your testimonies and ready to hear your word. Speak to us from your word today. In Jesus' mighty name we've prayed. Amen. Amen. So let's just begin with the testimony. Okay, here are the testimonies. So let me just, there are a whole lot of testimonies today that you will get to hear. I've written something. I know it's not good handwriting, but you should see it. So सबसे पहले शिवम को 3 दिन पहले बहुत ज्यादा बुखार था, उसको जा नहीं रहा था. Then all of us took that point and हम लोगों ने प्रेयर करना शुरू किया. And on the other hand, his sister came. उसके सर पे सुहानी ने पट्टी रखी and started to pray and reading the word of God. पढ़ती गई. And शिवम says कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था because मेरी हालत बहुत बुरी थी. और जितना उसने वचन पढ़ना शुरू किया, फीवर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया. And this is fantastic because Shivam has understood and Suhani have understood the principle that is behind healing. Praise God for this brother and sister team. I bless them in Jesus name. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुतों की बीमारी के लिए प्रेयर करेंगे और गॉड यीशु मसीह ने चंगा करेंगे. कीप अप द गुड वर्क शिवम एंड सुहानी. कीप अप योर फेथ, इंक्रीज योर फेथ. और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं, जो बीमार हैं या आपके लविंग लोग बीमार हैं, take the opportunity after this section is over, call them up and pray over them in Jesus name, because यीशु के कोड़े खाने से लोग चंगे होते हैं. So pray for them confidently. हम सिस्टर राधिका की टेस्टिमनी है कि उन्होंने मुझे कल दी थी कि पैंडेमिक के टाइम में गॉड ने उनकी रक्षा करी, उन्हें ग्रेस दिया और वो इस टाइम में बगैर जॉब के सरवाइव कर पाई. वी रियली थैंक गॉड. दिस इज अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी. मे गॉड हेल्प यू गेट द जॉब क्विकली एंड दैट यू विल बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स and they will learn something from your life. हम सिस्टर महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं. अभी इन्होंने पीछे फास्ट रखा था, बड़े वियर्ड सपने भी आ रहे थे, and a whole lot of confusion was happening. मैंने उनसे सिर्फ एक चीज बोली, मैंने कहा बेटा आपको प्रेयर क्या करनी है? You pray that you will become like Christ, because that's the whole goal. And she did that, and one dream came, but when we together prayed that night, 2 nights back, the dream has not come and she's feeling so strong in the Lord. Thank you, God. अगर आपको कोई भी गंदा ड्रीम आ रहा है, if any of you see demonic dreams, bad dreams, where you see something very bad and it makes you disturbed, it is not from God. What you need to do is trust God and pray over it. आपको भूल नहीं जाना है उस ड्रीम को.
bring it in front of Jesus and say, Jesus, ये dream आया, आप इसे cancel कीजिए, अगर आप मुझे warn करें, मुझे बताइए, and remove these negative things from my life. कभी कभी वो warning होगी, so that you change your attitude or your behavior. So always take God's warning and apply it in your life. Amen. God bless Sister Mahima and any other person who's seeing similar dreams. I cancel those negative dreams in Jesus' name. And Lord, अगर किसी को ड्रीम एक वार्निंग आया तो मैं प्रार्थना करती कि उस वार्निंग को लें और उस पर चलें यीशु के नाम से आमीन. We pray for, we thank God for Amitesh and his father. They had COVID and we believe and pray that they are fine in Jesus name. अभी एक और बहुत ही क्यूट टेस्टिमनी है सिस्टर राखी की प्रोविजन के बारे में. So what happened that राखी के पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे और वो ऐसा काम चाहती थी जहां पे उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, बिकॉज शी इज अ सोशल वर्कर एंड शी नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी. सो पैसे तो थे नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नौकरी पे कमिट कर नहीं सकती. सो व्हाट शुड शी डू? शी प्रेड एंड गॉड गिव हर अ सुपरनैचुरल प्रोविजन. परमेश्वर ने एक दुकान दी फ्री ऑफ कॉस्ट. परमेश्वर ने उस दुकान में सामान भर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट और वो दुकान में सारी फैसिलिटीज है और वो कहती है कि मैं यहाँ बैठ करके अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, जब मुझे प्रचार के लिए निकलना मैं निकल सकती हूँ क्योंकि मेरा वो इलाका ही प्रचार का है. आई मीन वाओ, आई मीन यू डिपेंड ऑन गॉड, गॉड विल ओपन द डोर. बट कई दफा लोग कहते हैं मुझे यही चाहिए गॉड से, यही चाहिए, बट गॉड हैज समथिंग बिगर एंड बेटर प्लान. देन वी लिमिट गॉड. लेट्स नॉट बी द पीपल टू लिमिट गॉड सो दैट ही कैन शो हिज मिरेकल. हम परमेश्वर को एक सांचे में ना ढाल दें, अपनी प्रेयर में एक ही चीज ना मांगे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रेयर करें ताकि वो जो वंडरफुल चीज गॉड ने आपके लिए रखी है वो आपको मिल जाए यीशु के नाम से आमीन. हम ब्रदर गुंजन अग्रवाल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते. कोविड से वो हील हो चुके हैं. उनकी वाइफ ने बोला था कि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट वी थैंक गॉड दैट ही इज हील्ड. हम ब्रदर अरुण की एक टेस्टिमनी है, जब उनके बेबी होने वाला था उन्होंने बताया उनके पास हाथ में ना पैसा था, एक भी पैसा नहीं था हॉस्पिटल जाने के लिए. साथ में उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी होगी या बेटा होगा, उसके लिए एक भी कपड़ा नहीं था और वो अपने परिवार के साथ प्रेयर कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने बहुत प्रेयर करी. बाई चांस किसी ने उन्हें कॉल किया, कोई ऐसे इंसान जो किसी और शहर में थे पहले और वो दिल्ली शहर में आए हुए थे. उन्होंने कहा मैं तुम कैसे हो ब्रदर? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ. उन्होंने कहा और क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है और बहुत जल्द एक खुशखबरी आएगी. तो उन्होंने कहा मुझे अपना पता दो, मैं आना चाहता हूं. तो भाई ने पता दे दिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा बैग लेकर के बच्चे के कपड़े, डायपर, हर वो चीज जो एक बच्चे के पैदा होने से पहले हम लोग बैग बनाते हैं वो लेकर के आए और वहां छोड़ के चले गए. लेकिन तब तक पता नहीं था कि वो लड़की होने वाली, लेकिन वो सारा सामान लड़की का था और वो उनकी बेटी का सामान था. तो बच्चे के पैदा होने से पहले ये सारी चीजों का आयोजन हुआ था. तो वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ. पैसे नहीं थे और वो हमारे हाथ में पैसे रख के गए जिसकी मदद से हम लोग उस काम को भी पूरा कर पाए. तो ये परमेश्वर है, ही प्रोवाइड्स. ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे हमारी इतनी टाइट सिचुएशन है, लेकिन कभी कभी टाइट सिचुएशन हमारी अपनी वजह से आ जाती है या परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे होते हैं. अगर उनके पास सब कुछ होता तो ये ब्यूटीफुल टेस्टिमनी नहीं होती. सो वी रियली रियली थैंक गॉड फॉर दिस टेस्टिमनी and all these testimonies that I have, and I just check if there are any other testimonies. There is somebody sending a prayer request, but we request you to send the prayer request in the prayer section time. मैं आपके लिए बाद में prayer कर दूंगी. So this is what God just put on their hearts, and it is time for me to show one more slide, and I know it's going to be slightly difficult, but let me try because these slides are so beautiful and you must see them. Okay. So अब ये समय है परमेश्वर के वर्ड का, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ. जितने लोग प्रोविजंस के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनको हीलिंग की प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप्स खराब हैं, मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से कि आपको वो हर चीज परमेश्वर देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको डिसीजंस लेने क्लैरिटी मिलेगी. आपको कंफ्यूजन है, गॉड कंफ्यूजन हटाएंगे. ही विल रिमूव योर कंफ्यूजन इन जीसस नेम एंड ही विल हील यू एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोविड इन जीसस नेम. यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फियर ऑफ कोविड in Jesus' name. Amen. So let's just go into the word of encouragement. So what have I been speaking in the last few times about, what has been our series of messages till now? Because I've got a long thought
ये चेन पूरी सीरीज बनती जा रही है। हमने पहले जब मैसेज लिया था 2 वीक्स बैक, हम लोगों ने डिस्कस किया था और समझा था कि हम परमेश्वर की संतान है, हम उनकी प्रोडक्ट हैं। अगर सैमसंग जो फोन आप लेके चलते J5, वो एक प्रोडक्ट है, उसे बनाया किसने? सैमसंग कंपनी ने। उसके इंजीनियर्स ने, डिजाइनर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने उसको डिजाइन किया है, उसे बनाया है। तो हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। So we were seeing that message and then we saw that how we need to have an instruction manual. ये last 2 weeks के messages थे. So instruction manual is nothing but the word of God. आज के दिन हम लोग सल्यूट करते हैं इंडिया के फादर ऑफ आवर नेशन. वी सल्यूट द फादर ऑफ आवर नेशन, लेट श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी. And we also and he's also known as Mahatma Gandhi and also known lovingly as Bapu. We salute him. So and we thank God that he was able to give this country his selfless contribution, and today we enjoy this free country because there was a mighty contribution by Mahatma Gandhi ji and a whole lot of patriots at that time. हम धन्यवाद करते हैं. Now my question, मुझे आपका आंसर चाहिए. मेरा क्वेश्चन है, गांधी जी की लाइफ का पर्पस क्या था? उद्देश्य क्या था उनकी जिंदगी का? अगर आप गांधी जी, हम सब ने पढ़ा, हम सब उनका आदर करते हैं, गांधी जी की जिंदगी का उद्देश्य क्या था? सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन चैट. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन चैट. बताइए, गांधी जी की जिंदगी का उद्देश्य क्या है? यस, आप मुझे बताने वाले हैं. आई विल सी इट. अभी थोड़ी देर में देखती हूं मैं. सो द नेक्स्ट थिंग, आई एम जस्ट चेकिंग. आई विल जस्ट टेक सम नेम्स. नाम सुनिए. श्रीमती ऋतु खरीधाल, श्रीमती नंदिनी हरिनाम, श्रीमती अनुराधा टीके. आपने इनके नाम सुने लेडीज के? हाउसवाइफ्स तो नहीं है ये. 2 आर डायरेक्टर्स, deputy directors at in the Mars orbit mission, and one is geosat team of Mars mission. आपको पता है ये तीनों लेडीज अपने घरों को भी मैनेज करती हैं, साथ में they contributed that इंडिया का मिशन, जो मंगल मिशन था, वो सक्सेसफुल हो. और नवंबर 5, 2013 में इंडिया की जो वाहन था मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो सफल हुआ. फ्लाइट टुक ऑफ टू मार्स, और ये पहली ट्राई में ही हो गया था, और पीछे ये औरतें थी. तो अगर मैं पूछूं कि इन लेडीज के लाइफ का पर्पस क्या था, ये क्या है, आप क्या सोचेंगे? व्हाट इज कमिंग टू योर माइंड? देन देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ विलियम कारवांदा. 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा था कि एनर्जी को कैसे यूज किया जा सकता है, और उन्होंने एक विंड मिल बनाई मलावी में, जहां पानी नहीं था. और अब उनकी आप चीजों को देख सकते हैं that he was a successful boy. What do you think was the purpose of William Kamanda's life? What was his life? What was the purpose of his? उनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या था? पूरा मलावी का वो एक जो एरिया था, वहां पर पानी नहीं था, but because of his contribution, उनका इन्वेंशन, वो एरिया बदल गया. So just think, what was his contribution? एक छोटा लड़का जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बैठ करके उनको सुन रहा था, अचानक से रियलाइज हुआ, मतलब काफी 2-3 दिनों के बाद रियलाइज हुआ खाना पीना नहीं है, क्या किया जाए? वो छोटा लड़का यीशु मसीह के पास गया 5 मछली और 2 रोटी लेकर के. हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन 5th क्लास में, जब मैं 5वीं क्लास में थी, हमने एक नाटक किया था. उसमें ये वाली चीजें हमने इस कहानी को किया था. तो अगर हम आज देखते हैं, उसका एक ही मेंशन है बाइबल में, क्या उसकी जिंदगी का पर्पस रहा होगा? What a big miracle happened after that. यीशु मसीह उसकी वजह से 5000 आदमियों को प्लस लेडीज और बच्चों को खाना खिला पाए, और 12 टोकरे बच गए. जो बाइबल में सैमसन है, उसकी जिंदगी का क्या कंट्रीब्यूशन था? What did he do? उसने लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों से बचाया, प्रोटेक्ट किया. और जब उसने गलत भी किया था, पाप भी किया, तो उसके बाद उसने गॉड से पश्चाताप किया, एंड ही वाज एबल टू सेव देम. पॉल का क्या मिशन था?
वो चाहता था यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता रहे. उसने कहा फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन. मेरे लिए फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए जीऊंगा, उनके प्रचार करने के लिए जीऊंगा, नहीं तो मेरे लिए मरना नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर अबाउट डाइंग. नाउ आई वांट टू आस्क यू, यीशु मसीह के मतलब यीशु मसीह का क्या मिशन था? सो वील जस्ट लुक एट दैट. लेट्स रिमेंबर वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ गॉड. हमें गॉड ने बनाया है, वो हमारे मेकर है. जॉन 1:3 में लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो आप और मैं गॉड के द्वारा बनाए गए हैं. परमेश्वर ने इटर्निटी हमारे दिलों में बसाई है. अनादि अनंत काल का ज्ञान हमारे अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके डाला गया है. जब हम उनकी प्रोडक्ट है, उनके डिपार्टमेंट से निकल करके आए हैं, उनकी सोच में से, उनकी इमेज के अनुसार है. कुछ अगर टूट फूट हो जाती है, अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसको फिक्स कर देते हैं. दर्द हो जाता है, वो दर्द को हील कर देते हैं. कोविड हो जाता है, वो कोविड हील कर देते हैं. मतलब लेकिन अगर कोई हथौड़ी लेकर के, अगर कप एक प्रोडक्ट है, लेट्स से ये मेरा ग्लास है, आई टेक अ सिप ऑफ वाटर, और मैं इस ग्लास को एक हैमर से तोड़ू, इफ आई ब्रेक दिस ग्लास विद अ हैमर एंड आई कीप crushing it and destroying it, then God is not going to do anything about it. I mean, he cannot, because the body is being broken. So there are people who commit suicide. So I just wanted to bring these thoughts to you. And now, what was the mission that Jesus had? Why did Jesus come on this planet Earth? What was the purpose of Jesus? Can anybody write it for me here? I'm looking for your answer. Yes, Luan, very good. Antra says simple living, living in high thinking. Luan says Gandhiji's purpose was to fight for the freedom of India from the Great Britain using non-violence. Thank you so much. Kuika says his purpose was to fight for the freedom and justice. Priyanka says his purpose was to change the life of people around him. Thank you so much, all of you who contributed. So what was the contribution that Jesus did for us? And why did God send Jesus on this planet Earth? I mean, many of us go to church, but we don't really get it. And I was sharing this with somebody yesterday. See, हमें God ने बनाया, God made us, God made Adam and Eve, and God gave them freedom. इस garden में जियो and enjoy it. But God also told them a do's and don'ts. When हम जब instruction manual, let's say this is my phone, and I have enjoyed this phone for 4 years. 4 साल ये चलाओ, December में 4 years हो जाएंगे. Not even once I did put it in water. मैंने इसे कभी पानी में नहीं डाला. मुझे पता है if I put it in water, ये खराब हो जाएगा. I know the instruction. In the same, और Apple phone कहता है कि do not put it in water. So God ने भी इसी तरीके से एडम से बोला इस पेड़ से मत खाना, but he still ate fruit of the tree. उसको खाने से sin came into the world. What is sin? Sin is disobeying God. Sin is परमेश्वर का जो कमांड है उसके विरोध में जाना, doing the opposite. How many of you and I have sinned against God? हमने ऐसे कितने लोगों ने sin किया है? We know the Bible is there, but we don't read it. We don't use it. We don't use it for the way it should be. हम कितने सारे principles को तोड़ते हैं. And you know what? Bible says अगर आपने एक command को तोड़ा या सारे commands को तोड़ा, it is breaking the law. We all have broken the law. And पुराने जमाने में आपने सुना है आज भी हमारे देश में गांव-गांव में बलिदान चढ़ाया जाता है. जब जानवर को बलिदान दिया जाता है तो जब उसका लहू बहता है, कहते हैं इसके लहू बहने से जो मेरे पाप है इस पे चले जाए और इसके लहू से मेरे को मुक्ति मिल जाए. बहुत सारे काम लोग करते हैं मुक्ति के लिए. मुस्लिम्स भी करते हैं बलिदान. जयपुर में भी की जाती थी बहुत सालों पहले आमेर के किले में, और अभी भी होती है गोट का बलिदान. और इसी तरीके से ज्यूज भी बलिदान करते हैं क्योंकि गॉड ने सिखाया था. और ये था कि जब उस एनिमल का ब्लड बहेगा, उसके ब्लड के बहने से ही नजात आएगी, सैल्वेशन मिलेगी, पाप धुल के साफ हो जाएंगे. तो अगर हमें पाप से छुटकारा चाहिए तो उसके लिए ब्लड को शेड करना था. बट हाउ मेनी एनिमल्स कैन बी किल्ड टू शेड ब्लड फॉर फॉरगिवनेस? ज्यूज करते थे, सब करते थे. आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये सब होता है. नाउ गॉड सेड I need to send an ultimate sacrifice because बलिदान का जानवर पवित्र होना चाहिए है. So then God sent Jesus. God sent Jesus on this planet Earth. Just a minute, I'm just checking something. I hope you don't hear a double sound. I'm just checking for that. Oh, I'm so sorry. There's a double sound here. I'm glad I just thought that ऐसा हो रहा होगा. So I've switched it off. Any messages from...
ओके, सो गॉड को पता था कि दुनिया बार बार सिन का सॉरी नहीं कर सकती जब तक ब्लड ना फ्लो हो. सो उन्होंने अपना डार्लिंग ऑफ हेवन को लिया, दैट इज जीसस. उन्होंने उसको इंसान के रूप में भेजा. ही सेंट हिम ऑन प्लैनेट अर्थ व्हेन वी सेलिब्रेट क्रिसमस. एंड देन जीसस डाइड फॉर आवर सिंस. यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, उनका ब्लड बहा. So every time we have sinned, we go to God. What do we say? God, I have sinned. Wash my sins with the blood of Jesus and make me new. And this is the purpose of Jesus. Jesus came so that he can die for us as sin. यीशु मसीह पाप बनकर मर गए. और जब हम उनके लहू को क्लेम करते, प्रभु उनका जो लहू बहा है उससे मुझे साफ कर दीजिए, हम साफ हो जाते हैं, हमारे पाप का रिकॉर्ड हमारे से हटा दिया जाता है. एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ गॉड. अनदर पर्पस वाज टू इंट्रोड्यूस गॉड टू यू. जीसस केम ताकि वो जो गॉड बहुत दूर हो जाते हैं पाप करने से, जब हम पाप करते हैं हमारा मन गॉड से दूर हो जाता है. जीसस केम टू रेकंसाइल गॉड टू मैन थ्रू हिज क्रॉस एंड ही डिड दैट. जीसस केम टू प्रिपेयर फॉर हेवन. उन्होंने हमें हेवन के लिए प्रिपेयर किया. सो दिस वाज हिज पर्पस. एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम जीसस अबाउट these things, and I'm just going to read a verse for you. यहां पर लिखा है इफिशियंस 1:11 में, उसी में जिसमें हम भी हैं, उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया गया हमें मिराज दिया है. In him we have obtained an inheritance. Sorry, I'm just saying something. जीसस का पर्पस है कि वो हमें पवित्र आत्मा दे. पवित्र आत्मा से इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दी. just forget that part because I just overstepped my message. Jesus came to live in our hearts. वो चाहते हैं वो हमारे अंदर रहें. हमें जीसस को चर्च एस्टैब्लिश करने नहीं है कि so and so mission ये mission ये. Of course he established church. What is that church? That church is us. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, I am the temple of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा जी का मंदिर हूं. Jesus came to make us the temple. And of course we go to church. पहली कलीसिया बनी. But he didn't come to establish a संस्था here. Some of us think like that. Not that. So we see this. He came to save mankind, save them from sin, and open their eyes to who they are. हम कौन है? जीसस ने हमें समझाया हम परमेश्वर के बच्चे हैं. What are we? He has given us authority, dominion. उन्होंने अथॉरिटी दी इस दुनिया को ओवरटेक करने के लिए, और ये इनहेरिटेंस दी उन्होंने हमको. जो भी चीजें आज इस दुनिया में हो रही हैं, in him we have obtained an inheritance. यीशु मसीह में हमें इनहेरिटेंस मिली है according to the purpose of him. गॉड का एक पर्पस है, who has called us to work according to the counsel of his will. गॉड की विल हमारी जिंदगी में पूरी हो. ग्रेट. सो what is your purpose and what is my purpose? गॉड ने प्लान किया कि हम लोग, सोचिए, हम लोग उनको बहुत आनंद दें. हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स, कितने लोगों के बच्चे हैं? आपको दुनिया में गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, खाने को सबसे टेस्टी मिल जाए, पार्टी में जाने को मिल जाए, डायमंड की रिंग मिल जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं. We love our children. और हमें सबसे अच्छा तब लगता है जब हमारे बच्चे हमारे साथ चलते हैं. कल मैं किसी बुजुर्गवार के लिए प्रेयर करी थी और वो बहुत दुखी थे. हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग है. उन्होंने कहा हमारे बच्चों के लिए हमने पूरी जिंदगी बिता दी और वो हमें इग्नोर करते हैं, वो हमारे से प्यार नहीं करते, वो हमें ऐसे रिजेक्ट करते जैसे कि पता नहीं क्या. हमने इतना कुछ किया. हम लोग, दे आर नॉट वेरी रिच पीपल, पर क्यों किया उन्होंने? बिकॉज दे लव देयर चिल्ड्रन, दे अडोर देम. इसी तरीके से क्योंकि हम गॉड की प्रोडक्ट हैं, गॉड का सबसे पहला पर्पस है हमारे लिए कि उनको हमारे अंदर बहुत प्लेजर आता है, बहुत खुश होते हैं गॉड हमसे. एंड लेट्स जस्ट लुक एट दिस वर्स इन होसिया 6:6. मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से खुश होता हूं. सो व्हेन गॉड टेक्स प्लेजर इन अस, वो चाहते हम भी उनमें प्लेजर ले, से खुश होता हूं. होम बलि से ज्यादा मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने. सो सबसे पहले हमारा पर्पस है गॉड को लव करना और गॉड को जानना. और इंग्लिश में लिखा, आई डोंट वांट योर सैक्रिफाइसेस, आई वांट यू टू लव मी, आई वांट यू टू नो मी.
तो इसी तरीके से बच्चों, अपने पेरेंट्स को इग्नोर मत करो, उनको प्यार करो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनको जानने की कोशिश करो, उनके मन को जानने की कोशिश करो। वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, उन्होंने आपको अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। सो प्लीज, गॉड भी चाहते कि सबसे पहले हमारा पर्पस है हम उनको प्यार करें और हम उन्हें और जाने। गॉड ने हमें अपने परिवार में रखा है, हम उसके परिवार को बिलोंग करते हैं। और हम जब इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 5 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके लय पालक पुत्र हों। So we are his children. God wants us to be his children. So we have to get that. God's unchanging plan has always been for adoption into his own family. हमारे लिए और आपके लिए, for bringing us to himself through Jesus Christ. And this grand plan and this grants his great, and this gives him great pleasure. So God takes pleasure, amazing pleasure. यीशु मसीह को जब हम अपने दिल में बुलाते हैं, वो हमारे एल्डर ब्रदर बन जाते हैं, एंड गॉड सेज इट गिव्स हिम प्लेजर टू कॉल अस हिज चिल्ड्रन। गॉड ने हमें जो इनहेरिटेंस, जो राइट्स जीसस क्राइस्ट के हैं, वो सेम राइट्स के आप भी हकदार हैं, आप लय पालक हैं। यू विल इनहेरिट देम व्हेन यू गो टू हेवन, एंड इवन ऑन दिस अर्थ यू विल वॉक एज गॉड्स चिल्ड्रन। क्या आप चाहते हैं कि आपके पावर को महसूस कर सके? क्या आप चाहते हैं कि आप भी गॉड के फैमिली में अडॉप्ट हो जाए? बिकॉज टिल नाउ यू जस्ट वर इन अ क्लाउड, यू वर नॉट क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। आर यू क्लियर नाउ? से दिस प्रेयर आफ्टर मी। डियर गॉड, I thank you for your plan of salvation. प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे इस योजना के लिए कि तू मुझे बचाना चाहता है। Oh God, thank you for the sacrifice of Jesus Christ. धन्यवाद यीशु के बलिदान के लिए। Thank you for the blood that was shed on the cross for me. धन्यवाद उस लहू के लिए जो मेरे लिए बहाया गया। मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। I agree and acknowledge that I'm a sinner and I've messed up and missed the mark. मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। वॉश माई सिंस विद द ब्लड ऑफ जीसस। मेरे सारे पापों को अपने लहू के द्वारा धो दीजिए। एंड रेकनसाइल मी टू गॉड। मेरे को मेरे पिता से जोड़ दीजिए और मेरा रिश्ता बना दीजिए। ओ जीसस, कम इन टू माई हार्ट। यीशु मसीह मेरे दिल में आइए एंड मेक मी द हेयर टू द इनहेरिटेंस। मुझे लय पालक बनाइए, वो तमाम इनहेरिटेंस जो गॉड ने मुझे मेरे लिए रखी है। यीशु मसीह मेरे बड़े भाई हैं। जीसस इज माई एल्डर ब्रदर एंड आई बिलोंग टू गॉड्स फैमिली। मैं परमेश्वर के परिवार को बिलोंग करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो नाउ यू एंड योर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड दैट यू बिलोंग टू गॉड्स फैमिली एंड बिहेव लाइक दैट। अगर आपका जन्म किसी और देश में होता, मे बी मालावी में होता, where this child was who did the invention of the windmill, you would behave like a Malawi. लेकिन आपका जन्म हिंदुस्तान में, you were born in India, you behave like an Indian, right? Is the sound clear, please? If you can just let me know. Oh, so some of us, I'll send this message later. So God, we will now start behaving because you are heaven citizen. आप स्वर्ग के वारिस हैं. Start behaving like that. Then also 1 Peter 1:3 says God gave us the privilege to be born again. अभी जब आपने यीशु मसीह को दिल में बुलाया, it's called born again. When you have invited Jesus in your heart, it's being called born again, नया जन्म होना. So God gave us the privilege to be born again so that we can be members of God's family. Wow! परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम born again दोबारा से जन्म ले, ताकि हम उसकी फैमिली के मेंबर्स बन सके। You belong to God. You are the member of God's family. Stop getting fearful. डरना बंद करिए, अपने कंधों को चौड़ा कीजिए। Walk tall, walk confidently, walk like the child of God and understand it. तभी तो आप अपना पर्पस ढंग से फुलफिल कर पाएंगे। 1 Timothy chapter 3 verse 15. आपकी फैमिली क्या है? चर्च। खुदा के लोग जब जमा होते हैं उसको चर्च कहा जाता है। चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, चर्च इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू वर्शिप गॉड एंड टू लर्न फ्रॉम गॉड। चर्च वो जगह नहीं है, एक प्लेस नहीं है। चर्च वो ग्रुप है जहां पर यीशु मसीह के गाने गाए जाते हैं, वर्शिप किया जाता है और उनके प्रचार किए जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। और जब अगर उसके चारों तरफ बिल्डिंग है तो लोगों को लगा कि ये बिल्डिंग ही चर्च है। So that's wonderful. Then we just learn from 1 Peter 2:17, love your spiritual family.
चर्च एक स्पिरिचुअल फैमिली है और उसको भी हमें प्यार करना है, उसको भी सपोर्ट करना है. अगर कोई नहीं मानता है उन्हें लेट गो कर दीजिए, बिकॉज हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. लेकिन जब वो सुनने वाले हैं, हम लगातार उनको पुश करते रहे और कहते रहे क्या गलत है क्या सही है, एंड टुगेदर वी विल बिकम स्ट्रॉन्ग. Then Hebrews 10:25 says, do not stop the habit of meeting with everyone, with one another. तो बाइबल में लिखा है हिब्रानियों 10:25 में कि हमें चर्च में लगातार मिलना है और ये गॉड की तरफ से कमांड है. वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड. तो पर्पस हमारा एक और है कि हम गॉड को प्यार करें, अपने फैमिली को पहचाने, हम एक दूसरे को के साथ मिलके चलें, लव करें और फेलोशिप करें, दूसरों के साथ सहभागिता रखें, और तभी हम स्ट्रांग होंगे. नहीं तो फिर से हमें वियर्ड थॉट्स आने लगे, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, बट हम हैं. एंड फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग पैंडेमिक के टाइम पे वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें होली स्पिरिट कहेंगे स्टार्ट, गो टू अ बिल्डिंग एंड वर्शिप टुगेदर, वी विल डू दैट. आप आएंगे? बताइए मुझे. हमें अभी पता नहीं है कि वो जगह कहाँ होगी, बिकॉज वी स्टिल हैव टू प्लान दैट. Will you come and fellowship with us? Maybe November. I don't know. जो डेट हमें गॉड देंगे हम आपको पहले से जरूर बताएंगे. So I want to know, will you come? I want you to come. And I want us to celebrate together and worship God. Amen. Okay. I hope, yeah, this is again open. I'm wondering what's happening. Okay, great. I'm just switching off the mic so that the other mic, again, the other speaker. Okay, so what is the other purpose that God has? God ने हमको यीशु मसीह की तरह बनाया. वो चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की तरह हो. We should be, and in fact अभी बहुत सारे लोग फास्टिंग कर रहे हैं and they're recognizing कि they have to be like Christ. So Romans 8 का 29 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है be conformed into Christ's image. हमें यीशु मसीह की तरह बनना है. और वो कैसे होगा? वो पवित्र आत्मा की सहभागिता से, वचन पढ़ने से, परमेश्वर को जानने से, फेलोशिप में जाने से हमारे साथ होगा. और मैं इसको जरा हिंदी में पढ़ देती हूँ. जिसे उसने पहले से जान लिया और पहले से ठहराया भी है कि उनके ऑनलाइन चर्च इज गोइंग ऑन, आई कांट टॉक टू यू. और पहले से ठहराया भी है कि उसने पुत्र स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों का पहलौटा ठहरे. फॉर दोज whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn of all brothers. So Jesus हमारे elder brother हैं और हम उनके younger brothers and sisters हैं, और God चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएं. तो उनके जैसे बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू जो यीशु मसीह के साथ जिन्होंने चलना शुरू किया है, यू कैन सी अ चेंज इन योर लाइफ? आपको लगता है कि आप बदले हैं? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, पहले आप कैसे थे, अब आपको क्या लगता है? आई एम नॉट, सो जस्ट लेट मी नो, आई एम वांटिंग टू नो, डू यू फील अ चेंज इन योरसेल्फ? ऑफ कोर्स. अगर आप यीशु मसीह, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप फेलोशिप में हैं, आप लगातार वीडियो सुन रहे हैं, यू आर रीचिंग आउट फॉर हेल्प, अगर आप कमजोर है कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है, अगर आप स्ट्रांग है आप दूसरों के लिए प्रेयर करें, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आने लगा द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ गॉड्स किंगडम वर्क्स टू ब्रिंग अ चेंज इन यू. एंड आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहीं बाहर पड़ी थी, गंदी हो गई है, एंड गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स फेलोशिप इज क्लीनिंग इट आउट. और कई दफा आई मीन वी ऑल नो दैट देयर इज दिस स्वान. एक स्वान था, आपको पता है, जो स्वान एक बर्ड होती है जो पानी में तैरती है, उसकी ब्यूटीफुल लॉन्ग नेक होता है, एंड ही यूज्ड टू, वो गलती से उसका जन्म जो था वो अंडा का शायद मिसप्लेस हो गया, एंड ही वाज विद द चिकन. वो कई दफा तक अपने आप को मुर्गी समझता था, क्वक 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 करने पर उसकी आवाज अलग आती थी, लेकिन वन फाइन डे वो स्वान बन गया, एंड ही रियलाइज, ओ माय गॉश, आई एम द स्वान, मैं एक बहुत खूबसूरत बर्ड हूं. और वो इतना एलिगेंट था, वो सारे स्वान तो व्हाइट कलर के थे और वो ब्लैक कलर का था, बट ही वॉज अ स्वान. आप भी एक्चुअली जो है आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप डरे हुए हैं, ओहो कल क्या होगा. You are talking like people of the world. You are not that person. You are a mighty person of God. God की eternity आपके दिल में manufacture करके भेजेगा. Just get that. How will you recognize that? When you are in fellowship and when you start disciplining yourself.
अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप उसे छोड़ ही नहीं रहे, एक दफा छोड़ के तो देखो, आस्क गॉड टू हेल्प यू टू लीव देम, यू विल। मेरी एक फ्रेंड थी, वो स्मोक करती थी, एंड उन्होंने कहा मैं ज्यादा स्मोक नहीं करती थी, आई वुड जस्ट नीड वन सिगरेट टू स्मोक विद माई कॉफी, आई थिंक एवरी मॉर्निंग और इवनिंग, समथिंग लाइक दैट, उनका कुछ अपना था। एंड बट देन वन फाइन डे शी रियलाइज शी वाज ग्रोइंग मोर इन गॉड, वो गॉड में बढ़ना शुरू हुआ। शी रियलाइज मुझे क्या करूं, मैं तो नहीं, मेरे को लत लगी, एक सिगरेट चाहिए बस, गॉड एक सिगरेट चाहिए। एंड देन शी प्रेड, गॉड टुक अवे दैट फीलिंग फ्रॉम हर, एंड बीच में वो फीलिंग आई, दोबारा वापस आई, तलब कहते हैं ना उसे, तलब आई, बट शी डिसाइडेड नो, मुझे नहीं पीना है। और वो दिन है, और आज का दिन है, आई थिंक 25 years तो हो चुके हैं और मोर, शी नेवर स्मोक्ड अ सिगरेट, एंड शी इज अ वेरी बिग टेस्टिमनी। आपको पता है सिगरेट की तलब कितनी ज्यादा होती है। सो हमें डिसिप्लिन करना है, हमारे बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका। हमारा, कुछ लोग इनसिक्योर रहते हैं, उनको सारे लोग अपने लिए चाहिए, एंड दे फॉरएवर सेइंग अरे मेरी हेल्प कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे इन लोगों के साथ। एंड हम कई दफा गलत रिलेशनशिप क्यों बना लेते हैं, जो नहीं भी बनाने, क्योंकि शायद मुझे इससे फायदा होगा। बट सो मेनी टाइम्स गॉड जस्ट टेल्स मी, गॉड ये क्या करना है, डोंट वरी, लीव देम, मूव अहेड, एंड आई जस्ट मूव अहेड, बिकॉज आई हैव टू ओनली प्रे फॉर पीपल एंड मूव अहेड। आई एम नॉट ऑन द एजेंडा कि लोग मेरे दोस्त बन जाएं, मैं सबके लिए प्रेयर करूं और फिर मुझे उनसे कुछ फायदा चाहिए। नो, आई डोंट वॉन्ट, माई गॉड इज इनफ। हमारा डिसाइपलशिप ये है कि हम अच्छे रिश्ते इसलिए बनाए क्योंकि हम गॉड को ग्लोरीफाई करेंगे, हमारी सारी गंदी आदतों को गॉड के सामने सरेंडर करेंगे। और कैसे होगा ये, हम लोग फास्ट करें, गॉड मेक मी लाइक क्राइस्ट, मेक मी लाइक क्राइस्ट, एंड आई विल जस्ट रीड आउट टू यू सो दैट वी कैन कन्फर्म टू बी लाइक क्राइस्ट। एंड देन वी सी दैट हमारे को डिसाइपल, मतलब गॉड वांट्स अस टू ग्रो स्पिरिचुअली, हम स्पिरिट में बढ़े और डिसाइपल बने अच्छे। देन गॉड वांट्स अस टू सर्व, वो चाहते हैं, अगर हम पढ़ेंगे साम 139 का 13, और वहां लिखा है मेरे मन का स्वामी तू है और तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचा है। यू फॉर्म माई इनर पार्ट्स, यू शेप मी फर्स्ट फ्रॉम इनसाइड। जब गॉड ने हमें अंदर से पहले शेप करा है तो क्या डाला है, ही हैज पुट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इन अस, ही हैज पुट मल्टीपल एबिलिटीज इन अस, एक अच्छा दिल दिया है उन्होंने, एक पर्सनालिटी डाली है, एक्सपीरियंसेस डाले हैं, टैलेंट्स डाले हैं। हम पढ़ेंगे 1 Peter 4:10, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार की तरह यूज करे। इंग्लिश में लिखा है, मतलब गॉड वांट्स अस टू यूज, ही हैज गिवन अस वेरियस एबिलिटीज एंड टैलेंट्स, और इनका यूज करना है, हमें इनको रिकॉग्नाइज करना है। एंड इसको कैसे यूज करना, टू सर्व अदर्स। पैंडेमिक का टाइम था, हमारे में से कई लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हमारा हाउस होल्ड, हमारे मेट्स, जितने लोगों को हम जानते हैं, हम सब ने मिल करके थोड़ा थोड़ा, और हमारे कुछ और भाई हैं, मिल करके जो भी हम किसी को दे सकते थे हमने देने की अपने जेब के अनुसार जरूर कोशिश की, और अपने साथ अपने रिसोर्सेज को उनके साथ शेयर किया। हमें कई दफा मुझे याद है, मैं ट्रेन में जा रही थी बैंगलोर, और बाय चांस आई वाज इन राजधानी में, अपनी मुझे जाना था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा मेरे सास ससुर को प्लीज ला दे, वो उनको संभाल नहीं सकते, एंड दे बोथ हैड अ प्रॉब्लम, दे कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर इन द ट्रेन, ऑफ कोर्स राजधानी, बट उनको दे कांट गो टू द टॉयलेट, सो आई सेड नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ देम। और थोड़ा सा हेल्प करना, ओनली द एल्डर, आई थिंक द मैन, ही जेंटलमैन, ही कुड नॉट गो, सो उनको हेल्प करते थे हम लोग, आंटी और मैं, और वो उनको मैं बैंगलोर लेके आई। लेकिन रास्ते में एक लड़का वहां पर बैठा हुआ था हमारे ऑपोजिट, और गॉड ने मुझसे बात करी, ये लड़का बहुत टूटा हुआ है, ये अपनी मम्मी से नफरत करता है, और ये समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी मम्मी को प्यार क्यों करूं, और ये अभी कहीं जा रहा है अपनी जॉब के लिए, लेकिन इसको अपनी मम्मी को माफ करना ही होगा, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन इसे माफ करना होगा, ये बहुत जरूरी है ना। आई सेड गॉड, ही इज एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर, मैं उसके पास जाकर के कैसे कह सकती हूँ। बट देन बाई चांस सो हैपेंड कि मेरा कुछ गिर गया, एंड ही सॉ इट, उसने कहा आंटी ये आपका, मैंने कहा थैंक यू। देन बाई चांस मैं नीचे उतरी, ही ट्राइड टू हेल्प मी विद समथिंग, बट ही वाज नॉट ट्राइंग टू टॉक टू मी, बहुत दुखी था। सो देन आई शेयर्ड द गॉस्पेल विद हिम, मैंने उसको मदद करी, उसको सर्व करा, मैंने उसकी भी हेल्प करी और उसको गॉस्पेल बताया, और मैंने कहा बेटा, तो उसको बहुत अच्छा लगा, कहते ये बातें आपको किसने सिखाई। देन द कन्वर्सेशन हैपेंड, एंड देन आई सेड बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, गॉड टॉक्स टू मी एंड ही टॉक्स टू मी थ्रू द वर्ड, एंड देन आई गेट टू नो, ओके।
and he has said something to me. What? आप अपनी मम्मी से बहुत नाराज हो, you're very angry with your mother, and God wants to restore that relationship. So he was, what? How do you know that? Because he thought I am a normal person. उससे लगा मैं एक साधारण औरत हूँ, wearing jeans and t-shirt. How do I know? ये तो बाबा संतों को ही पता चलता है ना, जिनका टीका होता है, ब्राउन कपड़े, गेरुए कपड़े होते हैं. And I was not looking like that. I looked that smart self of mine. So I said, God, Jesus मुझे बताते हैं. And he started to cry. And he cried and cried and cried. He says, मैं क्यों मम्मी को प्यार करूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, some story. Then I taught him, I blessed him, I prayed with him, and he said, okay, मैं मम्मी को माफ करता, I forgive my mother and I will restore with her if possible. हमारी ट्रेन जब हैदराबाद से पहले सिकंदराबाद पहुंची, his mother came with some food. She was there in that city and she came and met him, and you wouldn't believe it. He went down, he hugged his mother, he loved her, और वो वहीं पे उतर गया. He said, I'm going with my mother, though he had to go for a job. And his mother, क्योंकि ट्रेन काफी देर हो गई थी, उसकी मम्मी ने आके मेरा हाथ पकड़ा, ये आपने क्या कर दिया, मैं भी यीशु मसीह को मानती हूँ, हम लोग बहुत, पूरा चर्च बहुत दिनों से प्रेयर कर रहा था कि कोई तो चमत्कार हो, मेरा बेटा, मैं उसे अपनी reconciliation कर पाऊँ, I could reconcile with my son, and thank you so much. She kissed my hand. I mean, an absolute stranger. Are you serving people? Serve them. मुझे कोई वाहवा नहीं चाहिए थी, उनको मेरा नाम भी नहीं पता है. I've forgotten that guy. He has forgotten me. His mother has forgotten me. हम शो ऑफ के लिए कुछ नहीं करते. हमें नाम नहीं चाहिए, हमें वाहवा नहीं चाहिए, हमें तालियां नहीं चाहिए. But we serve people, and then we serve God and we minister to Him. So Psalm 116 verse 12 says, "What can I bring back to God? What He has done for me." So we need to give back to God. और हम यहाँ पर एक मिशन पे हैं. We are all on this planet for a mission, and I would like just to read Mark chapter 16, our favorite chapter, because वहाँ पे Great Commission लिखा है. Mark chapter 16 verse 15. वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. आज आपको और मुझे मालूम है जीसस कोविड से हीलिंग देता है. You and I know that God is healing COVID patients when we are praying for them. We know God is healing cancer patients, डायबिटीज पेशेंट्स. आई रिमेंबर एक औरत आई थी, उनका एक पैर छोटा था, एक पैर बड़ा था. यू हैव सीन एंड हर्ड अबाउट हर, बिजली, एंड मेनी मोर पीपल. गॉड हैज हील्ड देयर फुट. परमेश्वर ने उनके दोनों, एक अगर पैर आगे पीछे है, मेरे आंखों के सामने गॉड ने पैर को पीछे करा और दोनों को बराबर करा. This is our God. This is Jesus. How can we not tell this? How can we not go and tell, hello, आपकी बीमारी है, परेशानी है, you're broken, आपका दिल टूटा हुआ है, let me pray for you. So many times, once I was sitting on flight, और मैंने I was a little selfish, 5 hours, बहुत सारी मूवीज देखूंगी, नेशनल ज्योग्राफी देखूंगी, 5 घंटे सिंगापुर की फ्लाइट में मिलते हैं, from Singapore to Delhi, and I'm going to enjoy myself. So I took my window seat and I put all the things that I want to see. And मेरे बीच में एक लड़के बैठे, फिर एक लड़की बैठी, and she's acting weird. All kinds of nonsense is happening. And I'm watching, I really got disturbed. मैं बहुत disturbed हो गई. Then I said, okay, God, I know why she's sitting in my row. मुझे समझ आ गया, आपने मुझे क्यों यहाँ बिठाया है. Then I asked the guy, आओ मेरी सीट पे बैठ जाओ. Then I sat with her, मैं उसके साथ बैठी, फिर मैंने उसके साथ प्रेयर करनी शुरू करी, उससे बात करनी शुरू करी, और वो डीमन सदमे का उसके अंदर से निकला. And 5 hours, मतलब मुझे 1 घंटा लगा उसको शांत करने में, but then she went off to sleep और बिल्कुल calm down हो गई. So God uses us everywhere. How can I not tell her about God? How can I not tell her that she can be healed? And अभी आज सिस्टर कविता ने भी हमें prayer point दिया कि जो जितने भी hurting लोग हैं, सब heal हो जाएं यीशु के नाम से. So this is what I want to say. You and I are witnesses. So our goal is to tell others. Tell others. 2 Timothy chapter 2 verse 2 says, I'm sorry, I'm not able to read my own handwriting right now. So I'll just leave it there. But God has asked us to be witnesses and to help others to know Him more. And I believe that you will do that. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के लिए योग्य हो. We need reliable people to share the message. Do that. Then I would like to just bring this mark. I've already shared that with you.
the last verse that I want to share is Proverbs 11:30. God's people are like trees that bear fruit. They show their wisdom by saving souls. तो हमें लोगों की मदद करनी है, ये हमारे purposes हैं. And another thing that I want to bring to your notice is that let's continue to meet together. Let's continue to worship together. Let's listen to the words of God. It will bring and change our soul. हमारे soul को healing चाहिए है. You know what? जब हम शादी करते हैं, शादी आपका डेस्टिनेशन नहीं, ओहो मेरी शादी हो गई, इट्स ऑल ओवर. नो नो नो. शादी आप करते हैं ताकि इन पार्टनरशिप आप दोनों मिलकर के गॉड का पर्पस पूरा कर पाए. जैसे खुदा ने आदम और हवा को खड़ा करके, एडम एंड ईव को खड़ा करके कहा, नाउ दिस इज माय मिशन टू यू. So God has a mission. Madame Curie and her husband Pierre Curie, they won an award, the Nobel Prize. They were given because of the theory of radioactivity. दोनों साइंटिस्ट की शादी हुई, दोनों को अवार्ड मिला और उनका शादी हुई, उसी से मिल करके उन्होंने रिसर्च करी जो आज वर्ल्ड में फेमस है. आपकी जॉब डेस्टिनेशन नहीं है, आपकी गाड़ियां आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, आपका भंडार और धन और दौलत आपका डेस्टिनेशन नहीं है. गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर अ पर्पस. और मैंने ये बेसिक पर्पसेस आपको बताए हैं. अब आपको पता करना है कि मेरा पर्पस क्या है. एक्चुअली ये सारी चीजें, मतलब आपकी जॉब, आई एम सॉरी टू से दिस बट इवन योर वाइफ एंड योर हस्बैंड, आपकी फ्रेंडशिप, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, ये सब एक टूल है. इट इज लाइक अ टूल लाइक यू नो, a spade which will help you to fulfill your purpose in life. Get to know your purpose from God. Fast and pray and ask God your purpose. And Joyce Meyer says, जनरली हमारा पर्पस छुपा होता है उन बातों में जिसमें हमें आनंद मिलता है, जिन चीजों में हमें बहुत जॉय मिलता है. What are the things you really enjoy to do and you feel it's not a job anymore and you love doing that? Maybe मेरे पापा के बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं और मैं पसंद करती हूँ प्लांट्स को, बट मुझसे उनसे केयर नहीं होती. so I've hired somebody to take care of them. That's not my joy, but I know माधुरी यहाँ पर है, वो कहती है आंटी मैं इस पौधे को लगा दूं, मैं उस पौधे को लगा दूं, मैं आपके लिए लहसुन लगा दूं, मैं आपके लिए हरा धनिया लगा दूं. It's her joy. Maybe she is, वो किसान की बेटी है और उसका जॉय है कि वो ये सब चीजें लगाए और उनको ग्रो करे, उनको पानी डाले, उनको संभाले. ये मेरा नहीं, वो उसका पर्पस अलग है और मेरा पर्पस अलग है. So we have to find our purpose and it could be just anything. बट डियर पीपल ऑफ गॉड, जो लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, किसी का भी काम छोटा या बड़ा नहीं है. आपको पता है ना, पुराने जमाने में हमारा नारा क्या था हिंदुस्तान? जय जवान जय किसान. व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ इंडिया? Hail farmer and hail the soldier, because one protects us and one provides food for us. So that was a slogan which हम बच्चे लोग बहुत बोला करते थे, जय जवान जय किसान. बट नोबडी स्मॉल. जवान तो बहुत फेमस हो गया, किसान की कोई बात ही नहीं कर रहा. वो कौन सा किसान खेत में क्या कर रहा, वी डोंट नो, बट ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अस. विंग कमांडर राकेश शर्मा ने एक स्टोरी बताई थी. वो मेरी कंपनी के चेयरमैन थे और हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक मीटिंग हुई थी, सम विद अ वेरी फनी नेम. सो ही गेव अस एन एड्रेस और उन्होंने कहा अपने, क्योंकि आईटी इंजीनियर्स पीछे छुप के काम करते हैं, एंड ही सेड, एक छोटी सी मैं स्टोरी बताती हूँ विच इज द लास्ट स्टोरी. He said, मैं पैराशूट से उतरता था बिकॉज हमारी ट्रेनिंग चल रही थी. तो एक आदमी था जो हमारा पैराशूट को पैक किया करता था और बहुत अच्छे से पैक करता था और वो उसे हमारे लगाता था. लेकिन एक दिन उसमें गलती हो गई किसी और बंदे से और वो एक जो आर्मी के बंदे थे उनका पैराशूट खुला नहीं और उनकी डेथ हो गई. सो दिस पर्सन, कैप्टन विंग कमांडर राकेश शर्मा, वेंट टू दिस, उनका जो पैराशूट पैक करने वाला, थैंक देम, थैंक यू सो मच. आप अपना काम ईमानदारी से करते, आपको कोई नहीं जानेगा लेकिन आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है और आप मेरी रक्षा करते हो. एंड लेटर ऑन वी नो कैप्टन विंग कमांडर राकेश शर्मा मेड हिस्ट्री फॉर इंडिया इन 1983-84, जब वो स्पेसशिप में उन्होंने जाकर के कहा था हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. सो वी ऑल हैव अ पर्पस. दैट गाय इज ग्रेट बिकॉज ही इज अलाइव, बिकॉज गॉड, because this person did his job very, very faithfully, very, very faithfully. So you remember
that you have a purpose which needs to be done faithfully. So do you want to know your purpose? You have a mission, you have a purpose. Let's pray right now. मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सब लोगों के लिए. इन सब का पर्पस है. आपने इनको बहुत सारे टूल्स दिए, इंक्लूडिंग द गिफ्ट्स ऑफ हेवन. परमेश्वर, आपका पर्पस इनकी लाइफ में पूरा हो, ये अपना पर्पस जान पाए और ये इस जनरेशन में महान काम करने पाए. परमेश्वर, हम जानते हैं यू आर कमिंग बैक वेरी सून. वी नो यू आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून. लॉर्ड, हेल्प अस टू रीच आवर फुल पोटेंशियल. रियलाइज ये दुनिया की सब चीजें सिर्फ हथियार है और हमें इन्हें यूज करना है आपके किंगडम के लिए. लॉर्ड, हील एवरीबडी, ब्लेस देम. और मैं बिलीव करती हूँ दे आर ऑल रीचिंग देयर पर्पस. और जब ये स्वर्ग आएंगे, व्हेन दे कम टू हेवन, यू विल से, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट. Thank you, Father. In Jesus' name we've prayed. Amen. So, this was the word of encouragement that I had for you. If you have any prayer requests, you let us know. These are some scriptures that I wanted to you to see, but we don't have time. Now we will go into benediction, and let's do this together. मैं बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे. आमीन. So, before I say praise the Lord and Jai Hind, मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज कल हमारी Zoom बाइबल स्टडी अटेंड कीजिए. इट इज गोइंग टू बिल्ड यू अप. ट्यूसडे और फ्राइडे का वीडियो, शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए. ये मैसेजेस दूसरों के साथ शेयर कीजिए. YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टार्ट वॉचिंग दोज मैसेजेस. इट विल बिल्ड यू फ्रॉम इनसाइड एंड प्रिपेयर यू फॉर इटर्निटी. एंड do join us on Why Prayers Matter. प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है on Wednesday Facebook Live. This is what we are serving you, and get your mind ready. जब ये God allow करेंगे कि हम सब मिलें, तो हम सब अशोक विहार के एरिया में मोस्ट लाइकली मिलेंगे और वर्शिप करेंगे मिलके. एंड आई एम होपिंग टू सी यू. आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप भेजिए उसे हमें. और आपकी जो भी टेस्टिमनीज है, आप उसको 9811218303 पे भेजते जाइए, ताकि हम उसके लिए लिस्ट बना लें और सबको बता सकें. इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है, आपका टेलीकास्ट खत्म होता है. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद. थैंक यू सो मच. Get to know your purpose.